اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ والدین کا رکھا ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بعد ہو درود و سلام کا پھول نچاور ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آمین۔ اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے حق کے بعد جن کا حق بیان کیا ہے، اور کہیں ایک مقام میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے، اور حقوق اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں سب سے سر فہرست، سب سے پہلا نمبر جس کا آتا ہے وہ والدین ہے۔ اور اس کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر جہاں رب العالمین اپنے حق کے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بیان کیا ہے۔ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی اخذ لیا، یہ بھی عہد لیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی سورہ نساء کے آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ انعام کے اندر فرمایا، رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے نبی آپ لوگوں کو بلائیے، اے نبی آپ لوگوں کو کہیے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں کیا میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ پڑھ کر سناؤں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے؟ وہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اپنے رب کے ساتھ، اپنے معبود کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر چکا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر چکا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیں گے، سورہ لقمان کے اندر رب العالمین فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ 5 مقامات ہیں جہاں رب العالمین نے اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اور کسی دوسرے حق کو بیان نہیں کیا، بلکہ کیا بیان کرتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، رب العالمین نے قرآن کے کئی مقامات میں یہ وصیت بھی کیا ہے انسانوں کو۔ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم انسانوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ 3 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی آیت کے آگے دیکھیے، سورہ لقمان کی یہ آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں یہ حکم دے کہ تم رب العالمین کے ساتھ شرک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ، کہ تمہارے ماں باپ تم کو یہ حکم دے کہ تم اپنے رب کے ساتھ شرک کرو، اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، تو تم وہ کام نہ کرنا، تم اس کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن سن لو تم اس کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ رب العالمین نے والدین کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں یہ حکم دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تم گناہ کے کام کرو، فلا تطیعہما، تم اس کی اطاعت نہ کرنا، لیکن سن لو تم اس کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنا۔ ذرا تصور کریں کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اگر وہ تمہیں کہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میرے عزیزوں، دین اسلام کے اندر والدین کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اسی لیے تو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد والدین کا حق کا ذکر کیا ہے۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کے سلوک کے بارے میں، ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے والدین میں سے
तुम्हारे वालिदैन में से इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हारे माँ बाप दोनों या कोई एक बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उसे उफ तक न कहना। ये रब्बुल आलमीन ये तरीका बता रहा है, वालिदैन की खिदमत का ये तरीका बता रहा है कि उनमें से दोनों या कोई एक, उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की हालत में तुम्हारी जिंदगी में पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उसे उफ तक ना कहना, उसे उफ तक ना कहना। रब्बुल आलमीन का ये फरमान है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर उफ से छोटा कोई जुमला होता, उफ से छोटा कोई जुमला होता तो रब्बुल आलमीन उस जुमला को यहां बयान कर देता, लेकिन तकलीफ की सबसे छोटा जो लफ्ज है, अगर इंसान को कितनी ही छोटी तकलीफ क्यों ना पहुंचे, और जब कोई करीबी, जब कोई कीमती इंसान उसका कोई तकलीफ पहुंचाता है, सामने वाले को वो कुछ कह नहीं पाता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, तब वो क्या इजहार करता, उफ उफ उफ, ये इजहार करता है कि तुमने ये गलत किया है। रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है, फला तकुल लहुमा उफ, तुम उसे उफ तक नहीं कह सकते हो, तुम उसे उफ तक भी नहीं कह सकते हो। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और तुम उसे चिल्लाकर, डांट कर, गुस्से की हालत में तुम बात न करना। वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, डांट कर और चिल्लाकर बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अदब के साथ, नरमी के साथ बात करना। इतना ही नहीं, रब्बुल आलमीन और इंसान को सिखाता है, वग़फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बानी सगीरा, और तुम अपने वालिदैन के सामने अपनी बाजुओं को आजिज़ी और इंकिसारी के साथ झुका कर रखना, उनके सामने अकड़ना नहीं है, बल्कि अपने फर्मा बरदारी से अपनी बाजुओं को, अपने सरों को वालिदैन के सामने झुका कर रखना है, और वालिदैन के लिए ये दुआ करना है। रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को ये दुआ भी सिखला दी है, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बानी सगीरा, अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू भी रहम फरमा, जिस तरह उसने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया था, अल्लाह तू भी मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा। ये दुआ रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को सिखाया है। जरा तसव्वुर करें आज हमारा क्या हाल है, आज हम अपने वालिदैन के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं, आज हम अपने वालिदैन के साथ क्या बर्ताव करते हैं, आज हमारे बाप के साथ हमारा क्या रवैया है, आज हमारी माँ के साथ हमारा क्या बर्ताव है। जरा गौर फिक्र करें और रब्बुल आलमीन का ये फरमान लाकर सामने खड़ा कर दें कि रब्बुल आलमीन ने इस तरह कहा है, और जरा अपने दिल को टटोल कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। जरा सी बात में आने लगते हैं, उन्हें गालियां देने लगते हैं, यहाँ तक देखा जाता है कि एक बेटा अपने वालिद को मारने के लिए भी चले आते हैं, बाज दफा उसे मार भी देते हैं। अरे नादानो तुम क्या कर रहे हो, हमारा बाप तुमसे राजी है तो अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये मकाम मर्तबा वालिदैन का रखा है। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे जिहाद में जाना है, मुझे जिहाद के लिए इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? कहते हैं हाँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ उनकी खिदमत कर, जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद से बढ़कर है। जरा उसका मर्तबा समझिए,
क्या मकाम व मर्तबा रब्बुल आलमीन ने दिया है। इसीलिए तो कहा है व इन जाहदाका अलान तुशरिका बिही मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिहुमा। अगर ये तुम्हारे बाप तुम्हें शिर्क करने का भी हुक्म दे, रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी दूसरे की इबादत करना, ये इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। रब्बुल आलमीन कहता है कि अगर ये गुनाह करने का भी तुम्हारा बाप तुमको हुक्म दे रहा है तो तुम्हारे लिए ये ज़ेबा नहीं देता है कि तुम उसके साथ बदतमीजी करो, ये नहीं कर सकते हो। अगर वो शिर्क करने की भी बात करे, जरा तसव्वुर करें कि क्या मकाम मर्तबा रखा है अल्लाह ताला ने वालिदैन का। और अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि किस तरह उनके साथ अदब और नरमी से पेश आना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। अल्लाह के नबी मैं सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव, अच्छा अखलाक सबसे ज्यादा मैं किसके साथ करूं। अल्लाह के नबी फरमाते उम्मुक, तुम्हारी माँ के साथ। ये सहाबी फिर पूछता है अल्लाह के नबी उसके बाद मैं सबसे अच्छा बर्ताव किसके साथ करूं। अल्लाह के नबी कहते हैं उम्मुक। फिर अल्लाह के नबी से ये पूछता है अल्लाह के नबी मैं सबसे अच्छा बर्ताव किसके साथ करूं। अल्लाह के नबी फरमाते उम्मुक, तुम्हारी माँ के साथ। 3 मर्तबा अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करो। और 4थी मर्तबा कहता है तुम अपने बाप के साथ। ये सहाबी 4थी मर्तबा भी पूछता है कि अल्लाह के नबी 4थी मर्तबा पूछता है कि सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा हकदार हमारे हुस्न अखलाक का कौन है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम्हारा बाप है। जरा तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे औलाद, तुम्हारे दुनिया में बेटा बेटी जो होंगे, तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम्हारी बीवी जो दुनिया में सबसे चहेती होती है, उनके साथ तुम सबसे अच्छा बर्ताव करो। नहीं नहीं, रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने बताया कि तुम अपने माँ के साथ सबसे ज्यादा अच्छा अखलाक से पेश आओ। जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम के अंदर क्या मकाम व मर्तबा दिया है रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वालिदैन राजी है तुम्हारा रब राजी होगा। अगर वालिदैन नाराज हो जाते हैं, माँ बाप अगर नाराज हो जाता है, तुम्हारा रब भी नाराज हो जाएगा। और अल्लाह के नबी ने और एक हदीस के अंदर फरमाया कि अगर ये तुम्हारे बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है, जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस दरवाजे को सही सलामत रखो या उस दरवाजे को बंद कर दो, ये तुम्हारे अंदर है। उसी तरह अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि तुम अपने माँ की खिदमत करो, माँ के पैरों के तले जन्नत है। ये मकाम मर्तबा को रब्बुल आलमीन समझा रहा है। ये मतलब नहीं है कि माँ के पैरों के तले ही जन्नत है। नहीं नहीं, यहाँ अल्लाह ताला के नबी ने ये बतलाना चाहा और ये सिखाना चाहा, ये तुम्हें बतलाना चाहा कि इसके पैरों के नीचे इसकी अजमत को बताना चाहा कि कितनी अजमत है, क्या मकाम व मर्तबा है कि रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह के नबी कहते हैं इसके पैरों के नीचे जन्नत है। जरा तसव्वुर करें कि क्या मकाम दिया है रब्बुल आलमीन ने। और हम अपने गरीबानों को झांके कि हम क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं। अगर ये वालिदैन हमारे खिलाफ एक जुमला अपने जबान से, एक लफ्ज अपने जबान से निकाल दे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक वाकया मैं सुनाता हूं, सही बुखारी और मुस्लिम में यह रिवायत मौजूद है। बनी इसराइल के एक शख्स गुजरे जिसका नाम था जुरैज।
जुरेज नामी ये अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा आबिद, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहता था, हर वक्त नमाजों में मशगूल रहता था, अल्लाह के जिक्र और अज़कार में मशगूल रहता था। एक मर्तबा जुरेज की माँ आती है और उस वक्त जुरेज नमाज में खड़ा है। जुरेज की माँ पुकारती है, ऐ जुरेज, ऐ जुरेज, आवाज लगाती है। जुरेज सोचता है कि मेरी माँ एक तरफ आवाज लगा रही है, मुझे बुला रही है, मैं नमाज पढ़ूं या माँ की आवाज में जवाब दूं। जुरेज नमाज पढ़ता रहा। दूसरे दिन फिर उसकी माँ आती है और फिर से आवाज लगाती है, ऐ जुरेज। वो जुरेज नमाज पढ़ रहा है, यही सोचता है कि मैं नमाज को पढ़ूं या माँ की आवाज में लब्बैक कहूं। तीसरे दिन फिर माँ आती है और आवाज देती है और वो जुरेज अल्लाह की इबादत में मशगूल है। गुस्से से माँ की जबान से ये जुमला निकलता है कि अल्लाह इसकी मौत ना हो जब तक ये बदकार औरत की मुंह ना देख ले। इतना कहना था कि अल्लाह इसकी मौत ना आए जब तक ये बदकार औरत की मुंह ना देख ले। वक्त गुजरता है, एक बदकार औरत जुरेज के पास आती है और जब वो जुरेज उसकी बात को नहीं मानता है, ये बदकार औरत जाकर एक चरवाहे के पास जाकर बदकारी करता है। और जब बच्चा होता है, गांव के लोग उस बदकार औरत से पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है। वो औरत बताती है कि ये बच्चा जुरेज का है। अब गांव के लोग आते हैं और उस जुरेज के इबादत खाने को, जिसमें वो इबादत करता था, अल्लाह की इबादत करता था, नमाजें पढ़ता था, जिक्र अज़कार करता था, उस घर को तोड़ देता है। उसके बाद इसको मारता पीटता है। जुरेज क्या करता है, वजू बनाकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआएं करता था, करके उस बच्चे के पास आया और बच्चे के पीठ में थपथपा कर बच्चे को पूछा, ऐ बच्चा बता तेरा बाप कौन है, ऐ बच्चा बता तेरा बाप कौन है। वो दूध पीता बच्चा जो भी पैदा हुआ है वो कहता है कि मेरा बाप फला चरवाहा है, फला बकरी चराने वाला है। गांव के लोग हैरान कि बच्चा कैसे बोल रहा है। और जुरेज को ये पता चल गया था कि ये मेरी माँ की वो लफ्ज है, मेरे माँ के लिए वो बद्दुआ है जो मेरी माँ के जबान से निकला था कि अल्लाह इसकी मौत ना आए जब तक ये बदकार औरत की मुंह ना देख ले। माँ की एक नाफरमानी भी नहीं, बल्कि आवाज ना देना, नमाज की हालत में आवाज ना देना। जरा तसव्वुर करे किस तरह अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया। वहीं एक और ताबई जिसका नाम अवैस है, एक ताबई जिसका नाम अवैस है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक मर्तबा मदीना आते हैं अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त में मदीने में अल्लाह के नबी नहीं रहते, अल्लाह के नबी कहीं बाहर गए हुए थे। अवैस की मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हुई और अवैस के घर में उस वक्त उसकी बूढ़ी माँ थी और जिसका देखभाल करने वाला कोई दूसरा ना था। अगर अवैस चाहता कि चलो मैं एक दो दिन रुक जाऊं, अल्लाह के नबी से मुलाकात कर लूं, लेकिन वो एक दो दिन नहीं रुका क्योंकि उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ का कोई देखने वाला नहीं था। ये अवैस क्या करता है, अल्लाह के नबी से मुलाकात किए बगैर चले जाता है अपनी माँ के पास। एक दफा अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक को कहते हैं, ऐ उमर सुन लो कि तुम्हारे जमाने में कर्न से, यमन से एक करनी आएगा जिसका नाम अवैस होगा। ऐ उमर अगर उससे मुलाकात हो जाए तो तुम उससे अपनी मगफिरत की दुआ करा लेना। जरा तसव्वुर करे कौन उमर, वो उमर जिस उमर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कई बार ये कहा कि उमर तुम जन्नती हो, ऐ उमर तुम जन्नती हो, और ये भी कहा कि उमर जो आसमान के अंदर जितने सैयारे और सितारे देख रहे हो ये इतना नेकी तुम्हारा है। वो उमर जिसका महल अल्लाह में देखा है, उस उमर को अल्लाह ताला कहता है कि देखो वह आदमी आएगा
तो उससे अपने लिए मगफिरत की दुआ करा लेना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत आता है, यमन से बहुत सारे हाजी आते हैं। हजरत उमर फारूक ऐलान करते हैं कि कर्ण से कोई आया है, कर्ण से कोई आया है। कहते हैं हाँ एक आया है जिसका नाम अवैस है। हजरत उमर फारूक उसके पास जाते और उससे अपनी दुआ कराते हैं, अपनी मगफिरत की दुआ कराते हैं। जरा तसव्वुर करें कि माँ की खिदमत का क्या मकाम मर्तबा है कि एक सहाबी जो सहाबी रसूल है, जो जन्नती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ उमर तुम उनसे दुआ कर लेना। हालांकि उनसे ज्यादा अफजल उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम उनसे दुआ करा लेना। क्यों? अल्लाह ताला ने ये मकाम उसको क्यों दिया? माँ की खिदमत करने में। जरा तसव्वुर करें, हम उसकी अजमत को और उसकी अजमत को हम नहीं समझ सकते हैं। माँ बाप हमारे लिए क्या है, माँ बाप हमारे लिए कैसी दौलत है, हम उसे नहीं समझ सकते हैं। जब ये हमें छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम उसकी अजमत को समझेंगे, तब हमें माँ की अजमत के बारे में पता चलेगा, तब हमें बाप की अजमत के बारे में पता चलेगा। ये दुनिया के अंदर कितनी बड़ी अजमत है, एक बाप दुनिया के अंदर कितना बड़ा सहारा है। अगर ये बाप दुनिया के अंदर सिर्फ बिस्तर पर लेटा ही रहे तो एक बेटे के लिए ये इतना बड़ा हौसला होता है, लेकिन जब यही बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये बेटा तने तनहा हो जाता है। उसकी अजमत को हम अभी नहीं समझ सकते हैं। जब हमारे वालिदैन इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम उसकी अजमत को समझेंगे। जरा उन लोगों से पूछे जिनकी माँ इस दुनिया के अंदर नहीं है, जिनका बाप इस दुनिया में नहीं है, उनसे पूछे कि वालिदैन की अजमत क्या होती है, माँ की अजमत क्या होती है, बाप का मकाम क्या होता है, एक बेटे के लिए माँ और बाप किस कदर अहम होता है। जरा उनसे पूछ ले, हम इसकी कदर को नहीं समझेंगे। एक बाप अपनी जिंदगी में अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं करता है। ये वाहिद हस्ती है दुनिया के अंदर, वालिदैन जो सबसे ज्यादा अपने औलाद से मोहब्बत करता है, जिंदगी में अपनी जवानी को बर्बाद कर देता है, अपनी तमाम तर सलाहियतों को बर्बाद कर देता है। एक बाप दिन रात खटता है, एक बाप दिन रात मेहनत करता है। वालिदैन तो ये होता है जब ईद की दिन आता है, जब खुशियों की दिन आता है, वालिदैन की अपनी फिक्र नहीं रहती है। वो खुद फटा पहन लेगा, वो खुद पुराना पहन लेगा, लेकिन वो उन्हें ये फिक्र होती है कि मेरा औलाद नया पहने, मेरे औलाद खुशी से रहे। ये वालिदैन होते हैं, एक वक्त का रोटी कम खाते हैं, अपने वालिदैन की फिक्र करते, अपनी औलाद की फिक्र करते हैं, उन्हें अच्छी तरबियत देते हैं, उन्हें अच्छे अदब सिखाते हैं। ये वालिदैन होते हैं, ना जाने कितनी कुर्बानियां करते हैं अपने औलाद के लिए, लेकिन जब यही औलाद बड़े हो जाते हैं और जब वालिदैन बूढ़ा हो जाता है तब वक्त ऐसा आता है कि ये वालिदैन, ये माँ बाप अपने बच्चे को कुछ कहने से भी डरते हैं, अपने बच्चे को कुछ कहने से भी डरते हैं। हाय अफसोस, ये कैसापन है, ये कैसा जुल्मानापन है कि आज वाले औलाद अपने माँ बाप के साथ किस तरह रवैया इख्तियार करते हैं। कभी अपने बचपन का वो दिन भी याद कर लेना, कभी वालिदैन का वो वालिदा क्या वो दर्द भी याद कर लेना जब तुम्हें पैदा करते वक्त उसने आह आह की आवाज निकाली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक सहाबी है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का बेटा है। क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़का अपनी माँ को अपने कांधे पर बैठा कर काबे का तवाफ करा रहा है और वो कह रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए ऊंट हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ऊंट हूँ। और वो बंदा जो अपने माँ को अपने कांधे पर चपाकर तवाफ करा रहा है, वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं कि क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, अपने कांधे पर बिठाकर इसे तवाफ कराया।
क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नहीं नहीं, तूने तो वो एक आह का भी हक अदा न कर सका जो तुम्हें पैदा करते वक्त तुम्हारी माँ ने आह की आवाज ली थी, वो आवाज का भी हक तू अदा न कर सका। जरा तस्वुर करें कि हम उनके हक को कभी अदा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी दौलत है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी दौलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग़िमान फुरजुलन, वह आदमी हलाक व बर्बाद हो जाए, वह आदमी खाक आलूद हो जाए, वह आदमी जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाए। कौन आदमी? जिसके पास उसके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में आया हो, जिसके पास उसके माँ बाप बुढ़ापे की हालत में आया हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने लिए जन्नत में घर ना बना सका हो, वो आदमी हलाक व बर्बाद हो जाए। जरा तसव्वुर करे, ये अल्लाह ताला एक मौका देता है खिदमत का कि तुम वालिदैन की खिदमत करो और अपने लिए जन्नत में घर बना लो। इस्लाम के अंदर वालिदैन का मकाम और मर्तबा जितना बयान किया जाए कम है, जितना बयान किया जाए कम है। और एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, और ये हदीस सिर्फ हदीस नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसनाने व युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुना ऐसे हैं, दो गुना ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है। इंसान दुनिया के अंदर जितनी गुनाह करते हैं इसका सजा अल्लाह ताला कयामत के दिन आखिरत में देगा, लेकिन दो गुना ऐसे हैं, दो गुना ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला इंसान को जीते जी इसी दुनिया के अंदर दे देता है, और न जाने अल्लाह ताला ने कितने ऐसे लोगों को उसकी सजा दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसनाने युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया अल बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक बगावत करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया में सजा दे देता है। जरा तसव्वुर करें कि कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। जितनी बड़ी ये नेकी है, अल्लाह ने अपने हक के बाद वालिदैन का हक अदा की बयान किया है, उसी तरह उतना बड़ा ये गुनाह भी है। रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? सहाबा इकराम कहते हैं, ए अल्लाह के नबी क्यों नहीं, जरूर बताइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इश्रिकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि बंदा अल्लाह की साथ शिर्क करे और वालिदैन की नाफरमानी करे। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये वालिदैन हमारे लिए इम्तिहान है, ये वालिदैन हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला ने दुनिया में हर किसी को वालिद बनाया है, हर किसी को अल्लाह ताला ने औलाद दिया है, और दुनिया का यह तरीका रहा है कि जो जैसा करेगा उसे ऐसा ही मिलेगा, उसे वैसा ही मिलेगा। ये मत समझिएगा कि आज आपके वालिदैन बूढ़ा हो गए हैं, कल को आपको भी बूढ़ा होना है, कल आप भी बूढ़ा होंगे, कल आपका भी दिमाग छटिया जाएगा, कल आप भी पागल बन जाएंगे। ये मत समझिए कि आज आपका वालिदैन, आपकी माँ बाप बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, आप इसी तरह जवान रहेंगे। नहीं, आप भी बूढ़ा होंगे, और जो आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे ना, उससे भी बदतर अल्लाह ताला आपको अंजाम देगा। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने की, एहसान करने की, अच्छा सलूक करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।